hope that till now our previous sessions are very well cleared for you guys. After that, today we will begin another one of the new topic, that is the puberty. So guys, what are the basic ideas hope you may have regarding the puberty? What is the meaning of puberty? What are the different stages of the puberty? And what are the basic pathological disorders of the puberty? So guys, what is the meaning of puberty means what? Puberty means it is the starting of secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics in male or female. So that is the basic meaning of puberty. So what is the meaning means? It is the starting of secondary sexual characteristics, या it is the appearance of, आप स्टार्टिंग की बजाय यहां पे वर्ड ये भी ऐड कर सकते हो, appearance of secondary sexual characteristics in male or female, that is the called as puberty. So like second question, एक important question यहां पर यह आएगा कि what is the basic या cause या what is the basic physiology behind the puberty? puberty के स्टार्ट होने के पीछे क्या बेसिक इटियोलॉजी हो सकती है कि फीमेल में या मेल के अंदर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? सो द मेन रीजन इज, यू कैन से लाइक दैट इज द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी gonadal axis. See, this is the basic reason. Hypothalamus pituitary gonadal axis. Hypothalamus pituitary gonadal axis is responsible for the puberty. Gonadal means you can add the word here ovary. Which word you can add here? That is the ovary. So the basically hypothalamus pituitary gonadal axis, like you can mention like this also, HPO axis. Hypothalamus pituitary ovaries are responsible for the puberty. Like आपने देखा होगा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH. What is that name? GnRH. GnRH की what is the full form of the GnRH? GnRH means gonadotrophic releasing hormone. Gonadotrophic releasing hormone. ये जो GnRH है, it will stimulate the pituitary gland and pituitary gland will release FSH and LH. When the pituitary gland release FSH and LH, then the finally ovary will come in the action. What ovary will be acting? Once the ovary receives the stimulation from the FSH and LH, the ovary will release estrogen. And this estrogen, ovarian estrogen, is the main cause of puberty, for the beginning of puberty. Please ये हमेशा ध्यान रखना. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है यहाँ पे, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? द आंसर विल बी एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन you can answer. All right, so the estrogen is overall whole soul responsible for the puberty. So guys, this is well clear now that HPO axis is mainly behind the story of puberty. H for hypothalamus, then pituitary, then the gonadal, means ovary. So hypothalamus जो hormone release करेगा GnRH, that will act on the anterior pituitary gland. Anterior pituitary will release FSH hormone, which stimulates the ovarian follicles, and ovarian follicles will release more amount of estrogen hormone. And LH is responsible for the rupture of ovarian follicle, and that will lead to the ovulation. उसका क्या मतलब होगा? Ovulation means releasing of the ovum. All right, now along with the estrogen, estrogen के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीजें responsible हैं. So what are the two another things which are responsible for the puberty? In that you must remember that the thyroid gland and adrenal gland. Thyroid gland and adrenal gland also play very important role in the puberty. Thyroid gland and adrenal. So because the thyroid gland हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए?
बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, बेसल बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का जो पूरा काम है हमारे शरीर का, मेटाबॉलिज्म जितनी ज्यादा होगी पेशेंट की या किसी भी लाइक इंसान की या ह्यूमन बीइंग की हाइट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, स्केलेटल मसल्स का मास बढ़ेगा। तो ओवरऑल थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मेटाबॉलिज्म के कारण से हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए। प्लस बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू बिकॉज इट प्रोड्यूस द एंड्रोजन। एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल ग्लैंड यूजुअली प्रोड्यूस दी एंड्रोजन एंड एंड्रोजन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्यूबर्टी। देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, इंक्रीज इन दी सीबम प्रोडक्शन, increase in the sebum production, then axillary and pubic hairs. What I told? Axillary and pubic hairs increase in the sebum production, then you can say like is the voice changes. इंसान की जैसे सपोज मेल की बात करूं तो मेल की आवाज का भारी हो जाना, फीमेल की वॉइस का सॉफ्ट हो जाना, मतलब वोकल कॉर्ड में चेंजेस आना, वॉइस में चेंजेस आना, इन सारी चीजों के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल? एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये सारी चीजें याद रखना, एंड्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन दी वॉइस, or you can say that is the axillary and next the axillary and pubic hair growth, and finally increase in the sebum production. सीबम का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है हमारे फेस, जैसे सपोज कीजिए बेसिकली जो भी स्वेट ग्लैंड्स हैं या जो भी सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली, तो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर बेसिकली उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है उनकी हाइपरट्रॉफी के कारण, तो बाद में पेशेंट को या जो भी इंसान है प्यूबर्टी के बाद में स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मीनवाइल जैसे सिबेसियस ग्लैंड जो होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड दे प्रोड्यूस द सीबम, and once the androgens stimulate the sebaceous gland after the puberty, the patient will have या the person will have more amount of sebum production. अगर sebum का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, what will happen? There will be appearance of like you can say small or like oily face, फेस का ज्यादा ऑयली होना, उसके अलावा पिंपल्स, यू कैन से लाइक बेसिकली एक्नीज, यू कैन से एक्नीज। तो फेस के ऊपर आपने देखा होगा बेसिकली किसी भी बच्चों की जैसे एज ऑफ लाइक 12, 14, 15, 16, ये जो एज होती है जिसको हम प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, उस एज में उनके फेस पे एक्नीज वगैरह ज्यादा होती हैं, पिंपल्स ज्यादा होती हैं। उसका कारण क्या है? एड्रिनल एंड्रोजन्स। गाइस एंड्रोजन्स क्या होते हैं? एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे एंड्रोजन्स होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अगर एंड्रोजन का नाम आए तो सबसे पहले ऊपर किसका नाम आएगा? टेस्टोस्टेरोन। हमेशा ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट एब्यूडेंट एंड्रोजन विच इज रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। टेस्टोस्टेरोन मेल में दो जगह से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द मेल रिलीज फ्रॉम द टू पार्ट, वन इज द एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, दूसरा इट इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर जो लेडिंग सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो सेल्स भी क्या रिलीज करती हैं? एंड्रोजन्स को रिलीज करती हैं। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू दैट थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल along with the HPO axis in the beginning of puberty. Alright, अब चलिए अगले मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एक कंसेप्ट तो शायद आपकी क्लियर हुई होगी, दैट इज लाइक बेसिकली एक तो एंड्रोजन्स और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन हार्मोन, दे आर होल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के लिए ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्यूबर्टी के लिए जैसे सपोज टेस्टोस्टेरोन के अलावा ग्रोथ हार्मोन IGF-1, that is the insulin like growth factor 1. So is growth factor and IGF-1 they will act together and that will lead to increase in the height. हाइट का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये मेनली किसके कारण? ग्रोथ हार्मोन और उसका जो सहयोगी होता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या नाम है? IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, दैट इज रिलीज फ्रॉम दी लीवर। तो ये चीजें ग्रोथ बढ़ाती हैं, हमारी हाइट को बढ़ाती हैं आफ्टर दिस बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। और बाकी जो भी चीजें होती हैं वो सारे डेवलपमेंट जो होते हैं, वॉइस चेंज होना, सीबम का प्रोडक्शन होना, या उसके अलावा एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, उन सब चीजों के अंदर एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्लेज दी वाइटल रोल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी चीजें बताई उनमें किसका रोल था? टेस्टोस्टेरोन का। बट ओवरऑल जो प्यूबर्टी का अगर कभी भी नाम आता है तो प्यूबर्टी के लिए सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं गाइस अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी,
प्लीज याद रखना, ये जो थ्योरी किसने दी थी? द कंसेप्ट इज गिवन बेसिकली बाय द टर्नर एंड मार्शल. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरीज देयर आर 5 physiological changes occurs in puberty. So 5 common in female. तो फीमेल के अंदर बेसिकली अकॉर्डिंग टू टर्नर एंड मार्शल थ्योरी 5 बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं. सो व्हाट आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच अकर्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? इस थ्योरी के अनुसार देखिए कौन कौन से 5 बेसिक चेंजेस अकर हो रहे हैं. नंबर 1 दैट इज दी थैलार्की. क्या चीज थी? थैलार्की. द नंबर 1 चेंजेस इज दी थैलार्की. नंबर 2 चेंजेस इज दी adrenarche, then pubarche. Number 4 increase in the height, and number 5 is the menarche. Number 5 is the menarche. So guys, what you basically understood here, according to Turner and Marshall theories, the 5 basic physiological changes occurs in a female baby at the time of puberty. Puberty के समय ये 5 बेसिक चेंजेस ज्यादा नोटिसेबल होते हैं. जब ये 5 चेंजेस नोटिस होंगे तभी हम कहते हैं कि बेसिकली फीमेल इज हैविंग दी प्यूबर्टी या शी इज गोइंग थ्रू द प्यूबर्टी एज. नंबर 1 थैलार्की, नंबर 2 एड्रेनार्की, नंबर 3 प्यूबार्की, नंबर 4 इंक्रीज इन द हाइट, हाइट का बढ़ना या ग्रोथ या वेरी हाई लाइक इंक्रीज इन द ग्रोथ हार्मोन और IGF-1. देन लास्ट वन क्या है? मेनार्की. Guys, theilarchy means what? What is the basic meaning of theilarchy? Theilarchy means, you can say, development of breast. एक फीमेल बेबी के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना बेसिकली क्या कहलाता है? थैलार्की कहलाता है. सो द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज थैलार्की. नेक्स्ट इज द एड्रेनार्की. एड्रेनार्की मीन्स यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर. Development of axillary hairs. Next is the pubarchy. Pubarchy means what? Development of pubic hair. Development of pubic hair. Then height का बढ़ना. Then finally last one देखिए, सबसे लास्ट में क्या लिखा है मैंने? menarche. So what is the meaning of menarche? The first menstrual cycle. The first menstrual cycle या beginning of menstrual cycle in the female is called as menarche. सबसे पहले menstrual cycles होने को हम क्या कहेंगे? menarche कहेंगे. So I hope that I hope that these 5 steps are clear for you guys. हमेशा ध्यान रखना एक चीज के लिए, these are the step by steps और according to the priority wise. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मेनार्की स्टार्ट हो जाए और उसके बाद में थैलार्की आए. तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना. सबसे पहले थैलार्की, उसके बाद में एड्रेनार्की, प्यूबार्की, इंक्रीज इन द हाइट एंड फाइनली मेनार्की. मतलब प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें सबसे लास्ट में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना. तो गाइज इसको हमेशा लास्ट में रखना. थैलार्की हमेशा सबसे पहले आएगी. थैलार्की का मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना. फीमेल बेबी के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिट होना, ब्रेस्ट के अंदर बेसिकली जो उनकी एलुलर सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होना, लैक्टेटिंग डक्ट हैं उनकी ग्रोथ होना, वो सारी चीजें. और थैलार्की के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थैलार्की के लिए सबसे मेन जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन. कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन. ईस्ट्रोजन के साथ साथ यहां पे प्रोलैक्टिन प्लस progesterone is also responsible, but most important is the estrogen. The most important, the very first one is the estrogen. That is the main hormone which is responsible for the theilarchy या breast development. Because estrogen क्या करवाता है? As we have discussed already, estrogen is responsible for the hyperplasia. तो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज थे, मेमोरी ग्लैंड के जो टिश्यूज थे, उन टिश्यूज का हाइपरप्लेसिया करवाना, उनके नंबर बढ़ाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है. ऑल राइट. तो थैलार्की का शायद आपको मतलब समझ में आया होगा. हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ये भी समझ में आया. चलिए अगला एड्रेनार्की एंड प्यूबार्की, इसके बारे में बात कर लेते हैं. एक चीज याद रखना, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है.
जो एड्रेनार्की और प्यूबार्की है, इसके बारे में कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होता है कि सर पहले प्यूबार्की होता है उसके बाद एड्रेनार्की होता है, या कई लोग अपना सपोर्ट पॉइंट देते हैं कि नहीं पहले एड्रेनार्की होता है उसके बाद में प्यूबार्की होता है। तो एक चीज हमेशा क्लियर रखना, जो सेकंड और थर्ड स्टेजेस है दैट इज द एड्रेनार्की एंड प्यूबार्की दैट यूजुअली अकर्स टुगेदर, मींस मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, जो रेशियो लिया गया सेंसस है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स द चेंजेस ऑलमोस्ट अकर्स, द चेंजेस यूजुअली अकर टुगेदर, मीन्स कोई बड़ा नहीं है कि पहले एड्रेनार्की या प्यूबार्की होता है, बट फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले एड्रेनार्की याद रखिए, उसके बाद में आप क्या याद रखोगे, प्यूबार्की याद रखोगे। होप इट इज क्लियर नाउ, फाइन। और अब मुद्दा ये आता है कि इन एक्सिलरी हेयर्स का एंड प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होने का क्या कारण था। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इनके लिए जिम्मेदार कौन था, एंड्रोजन। शायद आपको याद आ गया ना, इंक्रीज इन द सीबम प्रोडक्शन, मैंने कहा था एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स का बढ़ना, वो इसमें चेंजेस आना, कौन जिम्मेदार बताया था मैंने, एंड्रोजन हार्मोन। सो द एंड्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। नाउ इंक्रीज इन द हाइट, हाइट का बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1 एंड IGF-2 भी रिस्पॉन्सिबल है, हम IGF-1 ही अकेला नहीं बोल सकते। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के लिए। देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होता है, द ग्रोथ हार्मोन इज बेसिकली रिलीज फ्रॉम दी, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी। कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन विल ट्रेवल टू द लीवर, ये लीवर के पास ट्रेवल करता है। ग्रोथ हार्मोन वंस इट रीच टू द लीवर, द लीवर विल रिलीज दी प्रोटीन, क्या रिलीज करेगा, प्रोटीन्स को रिलीज करेगा। व्हाट आर दोस प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स आर लाइक IGF-1 and IGF-2. These are the two basic proteins which are released from the liver in the response of growth hormone. अब क्या है, these proteins have the receptors throughout the body. बॉडी में मतलब आप कह सकते हो कि बॉडी की जो जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, मसल्स प्लस जितने भी हमारे शरीर की बोन्स और सेल्स हैं, उन सब के पास बेसिकली IGF-1 और IGF-2 के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली इनका क्या होगा, देयर विल बी ग्रोथ। इनमें क्या होगा, सब में जब IGF-1 और 2 इनको मिलेगा, इन सब की हाइट बढ़ेगी, इन सब की बेसिकली मसल मास जो है, बोन मास है, वो बढ़ेगा। तो देखा आपने, मतलब मेरा मेन मोटो आपको यहां पर यह समझाने का था कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो डायरेक्टली खुद ग्रोथ नहीं करवाता, इतनी ज्यादा डायरेक्टली भी एक्टिंग कर सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता, ग्रोथ हार्मोन कैन एक्ट, बट यूजुअली ग्रोथ हार्मोन जो होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि एक अपना एक पार्टनर रखता है असिस्टेंट के रूप में, दैट इज दी IGF-1 एंड IGF-2। इन दोनों के अंदर भी IGF-1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IGF-1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली लीवर के पास पहुंचता है ग्रोथ हार्मोन, और लीवर इन प्रोटीन को रिलीज करता है, IGF-1 एंड IGF-2। जब कोई बच्चा छोटा रह जाता है जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, तो हम उसको सप्लीमेंट के रूप में, सपोर्ट के रूप में हम लोग उन पेशेंट्स को IGF-1 भी दिया जाता है उनको हाइट के बढ़ने के लिए। तो गाइज हुआ क्या, IGF-1 और IGF-2 के रिसेप्टर्स से पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी की मसल्स के पास, हमारी बॉडी की बोन्स के पास, व्हेन दे रिसीव दीज टू प्रोटीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन द बोन मास, इंक्रीज इन दी मसल मास, इन सब का बढ़ना, ये सब कुछ क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ऑल राइट, तो ये ग्रोथ की स्टोरी समझ में आई आपको। तो ग्रोथ हार्मोन की पीक एज क्या होती है, ग्रोथ हार्मोन की पीक एज यही तो प्यूबर्टी की एज होती है, वही एज बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का पीक लेवल या पीक टाइम होता है, बिकॉज इसी समय बेसिकली बच्चों की हाइट है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। ऑल राइट, फाइनली द न्यू लास्ट वर्ड विच इज देयर फॉर यू गाइज, दैट इज दी मेनार्की। सो गाइज मेनार्की का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। I told you that menarche means it is the starting of first menstrual cycle. It is the beginning of first menstrual cycle in female is called as menarche. And menarche के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, एस्ट्रोजन, ओवेरियन एस्ट्रोजन। ओवेरियन एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द menarche. Hope it is clear now. ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि कौन सा हार्मोन क्या क्या बेसिक अपना काम एक्टिंग कर रहा है या क्या अपना रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, प्यूबर्टी के अंदर। सो गाइज दीज आर द बेसिक physiological changes which occurs in the female according to the Tanner and Marshall theory. Number 1 thelarche, adenarche, then pubarche, increase in the height, and finally menarche. I hope it is well clear for you guys now. Next one,
एज इसके अलावा आपको यहाँ पर प्यूबर्टी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बेसिकली सर्विक्स एंड यूट्राइन बॉडी रेशियो। उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक बताना चाहूंगा गाइस, एक छोटा सा पॉइंट जो एक कॉमन सेंस का भी कह सकता हूं पॉइंट। व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी? व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी? क्या एज होती है प्यूबर्टी की? द एज ऑफ प्यूबर्टी इज बेसिकली बिटवीन 12 to 16 ईयर ऑफ एज। मतलब 12 से 16 साल की जो एज होती है, 12 to 16 ईयर ऑफ एज, दैट इज अ वेरी कॉमन एज फॉर दी प्यूबर्टी। मोस्ट ऑफ द प्यूबर्टी यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग दिस एज, 12 to 16 ईयर ऑफ एज। याद रखना 12 to 16 ईयर ऑफ एज। फीमेल के लिए अगर बेसिकली कहूं तो फीमेल के अंदर यूजुअली प्यूबर्टी थोड़ा सा अर्ली बिगिन होता है कंपेयर टू दी मेल, मतलब फीमेल में जल्दी स्टार्ट होता है। ऑल राइट, द पीक एज ऑफ प्यूबर्टी इज, द पीक एज ऑफ प्यूबर्टी इज 13 ईयर ऑफ एज। मीन्स जब कोई फीमेल बेबी करीबन ऑलमोस्ट 13 ईयर की एज के आसपास होता है तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे विल डेवलप दी प्यूबर्टी। उनमें क्या होता है? प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। ऑल राइट, सो गाइस दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग दी एज ऑफ प्यूबर्टी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फीमेल के अंदर प्यूबर्टी इफ इट इज अकर बिफोर द एज ऑफ 10, कितने साल से पहले? 10 साल की एज की उम्र, जब बेबी 10 साल का हुआ है पूरा बच्चा, तो 10 साल की एज से पहले अगर प्यूबर्टी बिगिन हो रहा है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज प्रीकोशियस प्यूबर्टी। मीन्स बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 10, इट इज कॉल्ड एज प्रीकोशियस puberty. When the puberty begins after the age of 16, 16 साल की एज के बाद में अगर प्यूबर्टी बिगिन होती है, then it is called as delayed puberty. What it is called as? It is called delayed, मतलब डिले हो जाना प्यूबर्टी का, delayed puberty. All right. Now let's see the ratio of uterine body and cervix, or you can say the length ratio basically. Ratio of uterine body and cervix according to length। ये मेन इंपॉर्टेंस है। मैं किसके अनुसार? उनकी लंबाई के अनुसार। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लेंथ। तो लंबाई के अनुसार बेसिकली यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का क्या रेशियो होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। सो द रेशियो ऑफ, आप यहां पर लिख सकते हो यूट्रस का बॉडी एंड दिस इज द यूट्राइन सर्विक्स। ये यूट्रस का सर्विक्स हो गया। इनका क्या रेशियो होता है? तो यूट्राइन बॉडी एंड द सर्विक्स रेशियो एट बर्थ, मैं कब की बात कर रहा हूं? बर्थ की। व्हेन ए फीमेल बेबी विल बोर्न, तो एट बर्थ द रेशियो इज 1:2। व्हाट इट मीन्स? 1:2 मीन्स द when the suppose the length of cervix if it is 2 centimeter, अगर cervix की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो बॉडी यूट्रस की जो बॉडी की लंबाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। मतलब cervix से बॉडी की लेंथ क्या होती है? हाफ होती है। ये याद रखना। यूजुअली एक चीज, चलो हम इसको आगे लेके चलते हैं, यहां पर समझ में आया होगा आपको। तो एट बर्थ इनका रेशियो 1:2 होता है। सर्विक्स की लंबाई जस्ट डबल होती है बॉडी को कंपेयर करते समय। एट मेनार्की मतलब प्यूबर्टी की एज में, जब प्यूबर्टी बिगिन होती है, जब मेनार्की स्टार्ट होता है, उस समय बेसिकली इनका रेशियो क्या होता है? एट मेनार्की द रेशियो विल बी 1:1। क्या हुआ? 1:1। मतलब यूट्रस की बॉडी की जो लेंथ थी लगभग सर्विक्स की लेंथ भी सेम हो गई, तो दोनों की लेंथ लगभग इक्वल हो जाती है। नाउ इफ यू टॉक लाइक during the child bearing age. So during the child bearing age, what will be the ratio basically? At that time the ratio will be 2:1. This is the most crucial point, you must remember about that one. See, it means that whenever a female, when she begin her menarche, menstrual cycles, and after that throughout the child bearing age, means suppose the menarche begins from the age of 15 means, and she received the menopause at the age of 45, तो 15 से 45 जो 30 ईयर का जो गैप था, दैट इज द बेसिकली चाइल्ड बियरिंग एज। मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीमेल कैन प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग, शी कैन प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग, एंड दिस इज द एज व्हेन द रेशियो विल बी 2:1। 2:1 मीन्स, अब देखिए जस्ट उल्टा हो गया, बॉडी की जो लेंथ है
उसकी लेंथ से सर्विक्स की लेंथ जस्ट हाफ होती है, ये हमेशा याद रखना। तो बेसिकली अगर आपको इस चीज के बारे में लेके चलूं तो फंडस यूट्रस के नॉर्मली अगर एक एडल्ट फीमेल की अगर आप बात करें तो फंडस की लेंथ मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, द फंडस लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर। देन जो केविटी होती है यूट्रस की बॉडी जो है उसकी लेंथ है करीबन 3.5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। एंड देन फाइनली पॉइंट कम्स टू सर्विक्स एंड द सर्विक्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो गाइज आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 3 + 1 5, तो 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली पूरे यूट्रस के सर्विक्स के ऊपर वाले हिस्से की, सर्विक्स के ऊपर का जो भी पूरा पार्ट है उस पूरे एरिया की लेंथ कितनी है, लगभग 5 सेंटीमीटर, और सर्विक्स की लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आया होगा आपको कि बॉडी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, सर्विक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, जस्ट हाफ। सो दिस इज द बेसिकली रेशियो। अब बात करते हैं एट द मेनोपॉज। So from the menopause, what will be the basic ratio? So at the menopause, from the menopause onwards, the ratio will be just changed. Menopause बाद में क्या होता है? After menopause, the organs, basically the female reproductive organs will shrink in the size. They will automatically shrink in the size. तो जब वो shrink होने लग जाते हैं, उनकी atrophy होना begin हो जाती है. Then the ratio will again change, and now the ratio will be 1:1. What did you understand? आपने क्या देखा यहाँ पे, बॉडी की लेंथ कम हुई है। किसका लेंथ कम हुआ है? बॉडी का लेंथ एज कंपेयर टू दी सर्वाइकल लेंथ। सो व्हाट हैपेंस, सो एट द मेनार्की एंड एट मेनोपॉज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट द रेशियो विल बी सेम। ये चीज आपको एक ट्रिक के रूप में, एक आइडिया के रूप में मैंने आपको बताई है। मींस मेनार्की के समय जो रेशियो था लगभग सेम रेशियो मेनोपॉज के समय भी होता है, सेम, दैट इज दी 1:1। सो गाइज ये 4 पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीज आर लाइक, दिस रेशियो इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनी टाइम इट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट आप लोग प्लीज केयरफुल रहना। कई बार क्या होता है, यूजुअली सर्विक्स का नाम पहले दे देते हैं वो लोग और बाद में बॉडी वर्ड रख देते हैं कि सर्विक्स बॉडी रेशियो, तो उसमें आपको क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है आप इधर ले आना, इधर वालों को आप उधर लेके चले जाना। तो नेवर कंफ्यूज इन दैट वन। So what I told you, at the time of birth, at birth the ratio will be 1:2. Means सर्विक्स की जो लेंथ है वो बॉडी की लेंथ से लगभग डबल है, ऑलराइट, 1:2। तो बॉडी के कंपेयर करते हुए सर्विक्स की लेंथ जस्ट डबल होती है। उसके बाद मेनार्की के समय भी क्या होता है, द रेशियो विल बी 1:2, 1:1, आई एम सॉरी 1:1, मीन्स ऑलमोस्ट द रेशियो विल बी, द लेंथ ऑफ सर्विक्स एंड बॉडी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। नाउ फ्रॉम द चाइल्ड बियरिंग एज, जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो 30 इयर्स का जो गैप था, उस एज में जो बेसिकली यूट्रस की बॉडी की लेंथ होती है वो ज्यादा बढ़ती है। द लेंथ विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। सो कंपेयर टू द यूट्रस, यूट्राइन बॉडी लेंथ इज नाउ 2 सेंट, लाइक डबल कंपेयर टू द सर्वाइकल लेंथ। So the ratio is 2:1. All right. And finally, menopause. Menopause means the organs become shrink in the size, and now the ratio will be 1:1. Means menarche का जो रेशियो था लगभग सेम रेशियो मेनोपॉज के बाद में भी सेम हो जाता है. All right, guys. So this was the regarding a small topic for you guys. That is the ratio of